चलिए, so let us start with simple equations. Special equations. Now we have already actually done to an extent this topic in simple equations, right? Now it is special because the number of variables are more than the number of equations. If you remember, I think we tried to solve this question. 3x plus 7y is equal to 123, right? And x and y belong to, let's say, let's say natural number. How many solutions for this equation exists? इनफाइनाइट होता तो क्वेश्चन तो मैं स्पेशल इक्वेशन में नहीं बनाता, तो दिमाग लगाना है इसमें। हमारे पास 3x plus 7y की वैल्यू 123 दिया हुआ है और हमारा x और y जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। x और y जो है वो नेचुरल नंबर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली स्पेशल इक्वेशंस यही होता है कि वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। इस केस में हमारे पास एक ही इक्वेशन है और हमारे पास दो वेरिएबल हैं। नाउ वी ऑल नो दैट इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स then obviously it will form a straight line and the answer is infinite. Obviously that cannot be the answer in this case because we are having this condition x and y belong to natural numbers, so this will restrict our solution set and that is where we are interested in finding out the answers. So how do we approach this? How do we really get here? बड़े वाला जो नंबर है ना उसकी टर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद x पे करते जाएंगे जिससे सैटिस्फाई होगा। Okay. So the only way we go about is doing is hit and trial. So how do we approach this hit and trial thing? So that is which value we need to try to isolate. The first thing is, of course, you can isolate x or y. It will not make any much of a difference, but then it does make sense for us to isolate the variable whose coefficient is smaller. For example, here if you see the coefficient of x is 3 and here the coefficient of y is 7. So it makes sense for me to isolate 3 because the coefficient is less, because dividing by a smaller number is always better than dividing by a larger number. So if I find out x, I know it is 123 minus 7y divided by 3. So x can be taken as 123 by 3 minus 7 upon 3y. So x can be taken as 41 minus 3 upon 7 upon 3y. Okay. Now, of course, one way of doing it is you can put, since the value is small, but my interest of teaching you why we have to take a smaller coefficient is this. I may want to write it as 6y minus y upon 3 upon 3. You are understanding why I'm doing this? Because if denominator were to be 7, I can't split it, right? Because I have to go ahead and do trial and error. So I will always want to have a smaller value to do trial and error than to do a trial and error with larger value. So this once again gets 2. So I have a value of 41 minus 2x minus y upon 3. Now this value must be x. Now we know for sure that x is a natural number. So x cannot be 0, it cannot be 1, it cannot be 2. I mean, of course, it cannot be 0, it can be 1, 2, 3, whatever. For x to be natural number and y to be natural number, we know 2y will also be a natural number because natural number multiplied by any natural number is a natural number. So the difference of these two will be a natural number. Since the result needs to be a natural number, it makes sense that for us to understand that y by 3 must also be a natural number, because when you subtract a fraction from a natural number, it is no longer a natural number, it is some sort of fraction. Of course, you may have fraction minus fraction could give you a natural number, but then integer या natural number minus a fraction will never be a natural number. So in this case, it means y, if you really look at y needs to be necessarily a multiple of 3. Because if y is not 3, if it is 1, it will be 1 by 3. So obviously it will be a fraction. It cannot be 2 because once again 2 by 3 and it has to be necessarily 3. So if y is 3, this will become 41 minus 6 minus 1. So that is 41 minus 7. So 41 minus 7 is 34. समझ में आ रहा है? हाँ चार भी बोलो, छवि सॉरी, हाँ y को 3 पुट किया मैंने तो 2 into 3 is 6 and y divided by 3 divided by 3 is 1.
सो वहां से आया ये y की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉसिबल क्या वैल्यू होगी x की? 6। तो यानी ये डबल हो जाएगा, तो 6 होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 41 माइनस 12 माइनस 2, तो ये बनेगा 41 माइनस 14। तो इसमें से 14 माइनस करना है, यानी 7 ऑलरेडी माइनस है, तो 7 और माइनस कर दें तो 27 बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा है अगला क्या बढ़ेगा? यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ क्या कम होगा? 20। समझ में आ रहा है? जो चीज यहाँ बढ़ रही है वो उसी रेशियो में वहां पे कम है, क्योंकि दो चीजों का सम फिक्स है। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर अगली 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 12, तो यहाँ पे कितना कम होगा? 7, तो आंसर क्या बनेगा? 13। यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 15, यहाँ 7 कम होगा तो बनेगा 6, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 18, यहाँ -1। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे 21, तो ये बन जाएगा -4। ऑब्वियसली सॉरी, हाँ -8 आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है इसके बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ये वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, सिंस x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, इसके नीचे वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मेरे कितने पॉसिबल आंसर हुआ है? 1 2 3 4 5। So 5 possible solutions exist for this equation. So that is how you have to solve it. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Now let us look at this first equation, the first example that we have. Amit purchased a certain number of pencils and a certain number of pens spending ₹10 on the whole. If each pencil cost him ₹3 and each pen cost ₹1, then how many pencils and pens could he have bought? बताइए कैसे करें? So what is the equation that you can frame? पेंसिल्स x है, पेन्स y है, एक की कॉस्ट 3 है तो ये कॉस्ट ये बनेगी, इसकी ये टोटल मिला के कितना बन जाएगा? 10. So what can you do in this case? What do you want? You have x, you have y. If you take x as 0, y will become 10. If you take this 1, it will become 7. If you take 2, it will become 4. ठीक है, if you take this 3, y will become 1. If you take it 4, can it be possible? Y will be a negative value because x and y have to be count. Since he's buying certain number, we may want to take answer as 1 7 2 4 and 3 1. So these are the number of possibilities that we can have. आ रही बात समझ में? तो ऑब्वियसली इसके अंदर मैं बता, जैसा मैंने कहा कि ये आपको वेरिएबल्स आइसोलेट करके ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। Suppose we take date and a month, multiply the date with 12, which is the number of month in an year. And month with 31, which is the number of days in a month. And add up the two products. Suppose we are given that the sum is 555 and asked to find out the date and month.
So what is the equation? We take a date and month एक minute. Suppose we take the date and multiply the date with 12. हेलो, क्लास में हूँ। हाँ, आजकल थोड़ा रोजी होती है। हाँ, बस नवंबर तक का है, बस 5 बजे 5:30 बजे। So let us say we have a date. डेट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। और मंथ एम उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 31 से। और इसका जो सम है वो कितना है? तो डेट और मंथ पूछ रहा है, तो निकाल सकते हो इसको? निकालो। ठीक है मुस्कान, आंसर ठीक है तुम्हारा। ट्वेंटी 23 सितंबर आया सभी का आंसर। अब इसको आइडियल तरीका क्या है? किसको किसको आइसोलेट करोगे? डी को। डी को आइसोलेट करने का तरीका ये होगा 555 माइनस 31m डिवाइडेड बाय 12, यही करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 555 को 12 से डिवाइड कर दें
12 4 जा 48, कितना बनेगा ये 7, यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 6 जा 72 3। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज 12 into 46 plus 3 divided by 12 minus 24 minus 7m divided by 12। ये कर सकते हैं हम ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमें पता है ये तो कंफर्म डिवाइड होगा, यानी तो ये बना कि 40 प्लस 3/12, यहां पे -2m, ये m है सॉरी, है ना, -7m/12 यही बनेगा। अब हमें पता है कि 46 - 2m, ये तो इंटीग्रल वैल्यू है, 3 - 7m/12, ये 3/12, ये 7 है। अच्छा ये दोनों, अच्छा ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्या, तो ये माइनस में आएगा, प्लस में आएगा ये, तो बेसिकली 46 - 2m माइनस ऑफ 7m - 3 शुड बी डिविजिबल बाय 12। अब अगर हमें ये 12 यहाँ ट्राई करना होता है तो कर सकते हैं यहाँ पर भी 1 2, लेकिन इसको मेहनत करने में ज्यादा मेहनत है, इसको थोड़ा मेहनत कम आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें मान लो हमें m निकालना है और हमें यहाँ d चाहिए। अब m की वैल्यू हम 0 तो रख नहीं सकते कि मन तो कुछ तो होगा, तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 7 - 3 नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो 14 - 3 नहीं बनेगा, 3 रखेंगे 7 3 जा 21 - 3 नहीं जाएगा, 4 रखेंगे 7 4 जा 28 - 3 नहीं जाएगा, 5 रखेंगे 7 5 जा 35 - 3 32 नहीं जाएगा, फिर 6 7 जा 42 - 3 नहीं जाएगा 39, तो कितने में जाएगा, 7 8 जा 56 - 3 नहीं जाएगा, 7 9 जा 63 - 3 में चला जाएगा, 63 - 3 60, 60 डिवाइड बाय 12 इज 5, तो इसका मतलब m की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 9, तो ये मेरा बनेगा 46 - 18 माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5, तो इसका मतलब 18, 46 में से ये भी माइनस में है, 18 और 5, 18 5 23 यानी -23, तो कितना बना 23, तो डे कितना आ गया 23, ऑब्वियसली क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो दूर आएगी, 12 महीने होते हैं तो काम चल गया, यानी इसका हम किसकी बात कर रहे हैं 23 सितंबर, ये डेट है और ये मंथ है, ये ट्रायल एंड एरर करके आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर, बट है, और क्या कर रहा था, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं जो आप मेरे पास बाद में लाओगे डाउट के लिए। आगे समझ में आया, कौन सा बेटा साइन कहाँ पे, यहाँ पे, ये देख, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको -2m किया -7/2, ठीक है, ये -2m मैं यहाँ ले आया, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो यहाँ पे आ गया +3/12 माइनस, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 3 - 7m/12 भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये बाहर पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि ये बाहर लिखा हुआ था मैंने माइनस, तो अगर मैं इसमें से मैं बाहर माइनस बाहर निकालूंगा तो इसको 7m - 3 कर सकता हूँ, यही देखो 7m - 3, वो तो हाँ 7 माइनस था ना, जब माइनस ब्रैकेट में बाहर निकाला इसलिए पॉजिटिव हो गया, नॉर्मली तो माइनस था, माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर प्लस करना पड़ेगा, बस ये। हाँ जी क्लियर है, ठीक है चलो करें आगे। ओके नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर of positive integers xy satisfies the equation
ये सॉल्व करना। स्पेयर पेन है? खाली है? स्पेयर है? पेपर भी दे दो कोई है तो, करना ही है, सॉल्व करना पड़ेगा। रफ पेज निकाल देना। हाँ जी, बन रही बात। ऑर्डर्ड पेयर समझते हो?
Okay, so there will be 21 pairs. देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे करना चाहिए, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरा नंबर बनेगा y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय, ये बनेगा 24x प्लस 24y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगी। इनमें से किसी में से भी कुछ भी कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 24 माइनस एक्स बनेगा। अब यही चीज मुझे एक और बनानी है, क्या चाहिए, 24 माइनस एक्स चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी 24x है, तो मान लो मैं माइनस 24 ले लेता हूँ कॉमन, तो माइनस एक्स तो आ ही जाएगा, प्लस 24 और चाहिए, मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। टेक्निकली मैंने माइनस 24 इंटू प्लस 24 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी माइनस 24 इंटू 24 लिखना पड़ेगा। ये मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं कि इन दोनों में से मैं 24 माइनस एक्स कॉमन ले सकूं, और यहां से मैं y माइनस 24 कॉमन ले सकूं, और यहाँ पे माइनस 24 इंटू 24 आ जाएगा। मैं वापस माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो ये x माइनस 24 बचेगा, ये y माइनस 24 बचेगा, इज इक्वल टू, मान लो माइनस है तो 24 इंटू 24 आएगा, माइनस में कट जाएगा। यही बात है बेसिकली। ये दो चीजें हो गई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 576। इसका मतलब है कितनी पॉसिबल पेयर में ब्रेक हो सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 8 3 12, यानी 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 2, यही बन सकता है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 बनेंगे। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, 7 इंटू 3 21 फैक्टर्स बनेंगे। इस 21 फैक्टर्स में क्या बनेगा, 21 फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन दो हिस्सों में बांटना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ नंबर इनटू 2 फैक्टर्स वो इसका आधा हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये 7 21 है, इसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें नहीं चाहिए तो -1 कर देते थे और +1 कर देते थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ जाता था। तो मान लेते हैं मैं एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लेता हूं तो -1 कर लेता हूं, तो बन जाएगा 21 माइनस 1 20/2 10। 10 जोड़े बनेंगे, लेकिन ये 10 जोड़े बनेंगे कैसे कैसे बनेंगे, एक जोड़ा एक पेयर बनेगा 1 इंटू 576 बनेगा मान लेते हैं, एक दूसरा बनेगा 2 इंटू 238 बनेगा, ऐसे बनेंगे बहुत सारे। लेकिन अगर हमने x माइनस 24 को 1 माना, तो फिर y माइनस 24 को हमें 576 मानना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि इसमें x की वैल्यू 25 आ गई, इसमें y की वैल्यू जो भी आ गई। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है हम x माइनस 24 को अगर 576 माने तो y माइनस 24 को 1 मानना पड़ेगा। इसका मतलब एक आंसर इसमें बनेगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू बनेगी, कितना बनेगा ये इसमें जुड़ जाएगा तो 80, 620 है 25, और ये कितना बनेगा 600 है ना, 600। और दूसरे वाले में x की वैल्यू बनेगी 600 और y की वैल्यू बनेगी 25। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ये अलग काउंटिंग है और ये अलग काउंटिंग। ऑर्डर्ड पेयर 1 2 एंड 2 1 आर डिफरेंट, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो 10 तो जो बनेंगे वो ऐसे वाले बनेंगे, ऑर्डर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गए मेरे 20। लेकिन हमने सेम वाला नहीं माना था, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमने x माइनस 24 इज इक्वल टू 24 और y माइनस 24 इज इक्वल टू 24, ये वाला नहीं माना है जहां पे x की वैल्यू 48 आ गई और y की वैल्यू भी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये वाला केस इसमें नहीं है, वो जोड़ देंगे तो दोनों केस मिला के 21 केसेस बन जाएंगे। ये मेरा आंसर है। इसमें जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया था सारा कुछ लग गया, काफी कुछ लग गया। वो तेरे की ये या -1 किया था ना, मैं ये कह रहा हूं कि पहले हमें इसको इस तरीके से रिजॉल्व करना है। यहां तक समझ में आ रहा है, x माइनस 24 इंटू वाई माइनस 24। अब ये है किसी दो चीजों का प्रोडक्ट, मान लेते हैं दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट मेरा है 24 का स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व करना है दो फैक्टर्स में, कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं उसका फॉर्मूला याद है। अगर मेरे पास कोई नंबर a की पावर n, b की पावर m, c की पावर r है, तो नंबर ऑफ वेज इंटू 2 फैक्टर्स करने में याद है हाफ इंटू n+1। लेकिन अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर था तो उसमें एक पेस था, एक तो या तो +1 या -1। +1 लेने का मतलब है जैसे 36 के फैक्टर थे 6 6, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 x की वैल्यू बात बराबर है। अगर वो नहीं लेना है तो -1 करना है, लेना है तो +1 करना है। तो हमने इसको क्या किया,
हमने इसको रिजॉल्व किया 576, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 6 + 1 7 इंटू 2 + 1 3, ये 7 इंटू 3 आ गया। -1 क्यों किया हमने? क्योंकि 5 ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने उसको एक बार छोड़ दिया। अगर हम ले लेते तो बाद में उसको माइनस करना पड़ता, क्योंकि 2 बार ले लेते। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए? 10। नंबर ऑफ पेयर कितने? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ऑर्डर्ड पेयर की वजह से। यानी x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 600, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 600, y की, ये दो अलग अलग काउंटिंग करनी है, इसलिए मैंने इसको डबल किया। लेकिन एक छोड़ दिया था ना यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला, उसको ऐड कर दिया। हाँ जी रशिका बोलो, समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल फंस जाएंगे बिल्कुल ही। अब है बहुत माइनर सी चीज है, लेकिन चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ एकदम सेम लाइंस पे, आप कर पाएंगे। 1/x + 1/y is equal to 1/18. How many or some same positive ordered pair x और y? Positive ordered pair (24 × 24) डिडक्ट नहीं, और ये किया ना यहाँ पे -1, देख ये माइनस किया, लेकिन भाई 24 × 24 2 बार नहीं होगा, एक बार तो आएगा ही ना। 2 बार मतलब ऑर्डर्ड पेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर करेंगे, मान लो x -24 को 24 मान लिया, y -24 को 24, तो x की वैल्यू 48, y की वैल्यू 48। ऑर्डर्ड पेयर करेंगे तो y की वैल्यू 48, x की वैल्यू 48, तो बात तो बराबर हो गया। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 हो सकती है फिर? नहीं हो सकती बेटा, क्यों आएगी 0? तो फिर 24 - y को अगर हम 24 लेंगे तो y 0 नहीं आ जाएगा? कैसे आएगा बेटा? x -24 = 24, तो x की वैल्यू 48 आएगी, तो 0 कैसे आएगी? नेगेटिव थोड़ी ना ले रहे हैं दोनों तरफ। ये 24 और 24 हमने x -24 और 24 - y को माना। नहीं नहीं बेटा, x -24 और y -24 को माना। वो माइनस था ना, कैंसिल किया है, देखो इसको इंटरचेंज किया। ये 20 यहाँ से देख, ये 24 - x है, ये x -24 है। क्यों? यहाँ माइनस था, वो माइनस यहाँ से कैंसिल कर दिया। देखा? ठीक है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो, हाँ जी, कहाँ से? सेंट्रल बैंक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। ITR, हाँ लेकिन अभी उसकी वो नहीं आई है, क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली मेरे को, CA के पास पड़ी है अभी। हाँ, ठीक है जी, ओके। कितना आंसर है? 15। ठीक है, नहीं ठीक है, क्या नहीं आया? इक्वेशन क्या बनी तेरी?
क्या है y माइनस 18? अच्छा, इंटू, हाँ यहां तक ये सही है इक्वेशन। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? 4 + 1 इंटू 2 + 1, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के लिए मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो एक नंबर ऐसा होगा जो सेम इंटू सेम नंबर होगा, उसको मैं एक बार माइनस करना चाहता हूं, तभी ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इवन प्लस वन ऑड होएगा, इवन प्लस वन ऑड होएगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होएगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितना बना? 5 3 जा 15, 15 माइनस 1 कितना बनेगा? 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। ये 7 पेयर बनेंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर करने के लिए डबल करना पड़ेगा, तो बन गए 14। लेकिन वो एक इक्वल टू वाला हम छोड़ चुके हैं, वो एक और ऐड करना पड़ेगा, 15। अगर आप इक्वल टू वाला, कोई बच्चा बोलता है इक्वल टू वाला लेना है, तो ये क्या करेगा? 4 + 1 करेगा, इंटू 2 + 1 करेगा, +1 कर देगा। कितना बनेगा? 5 इंटू 3 15 + 1/2, तो ये मेरा बनेगा 8। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर करेंगे तो डबल करना पड़ेगा, तो 16 बनेगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में कहां प्रॉब्लम आएगी? जब तूने x माइनस 18 को मान लेते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 लिया, और दूसरा y माइनस 18 को भी तूने 3 स्क्वायर इंटू 2 लिया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू भी आ गई 18। इसका ऑर्डर्ड पेयर लेगी तो ये वाला y की वैल्यू 18 हो जाएगी और ये x की वैल्यू 18 हो जाएगी। लेकिन ये तो अलग अलग आंसर थोड़ी ना है, आंसर तो एक ही है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर डबल हुआ था वो माइनस करना पड़ा, इसलिए वो ऑर्डर्ड पेयर डबल में से माइनस करेगी, तो आंसर आ गया 15। ठीक है जी। हटा दो इसको एक बार, ऊपर चलें। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अगला वाला, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर फॉर x एंड y वेयर y is greater than 0 satisfies this equation 5/x plus 1/y is equal to 1/15। ये कंडीशन है हमारी।
आंसर 16 है इसका। ठीक है, खुशी 16 है। क्या इक्वेशन बन रही है, फिर गड़बड़ हो रही है? इसका आंसर है 16। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो फिर लगाना क्यों है? 12 बनता है, लेकिन 12 तो सारे पॉजिटिव बनते हैं। और यहाँ पे बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, मैंने, हाँ मैंने बोला ना ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स, बोला था ना, शायद लिखा नहीं मैंने, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स चाहिए। इसका क्या मतलब है? यानी नेगेटिव एक्सेप्टेबल है, तो जो 12 हैं उनको पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगा और नेगेटिव्स वाले भी तो चलेंगे। दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 24 हो गए। लेकिन इस 24 में वो केसेस आ जाएंगे जहां y की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, वो केसेस हटाने पड़ेंगे, वो 8 केस हटाने पड़ेंगे। है जी? देखो ऐसे है इसको, ये आता ना डाउट में, इसको लेते हैं, ये बनेगा मेरा 5y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/15। 75y प्लस 15x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये बनता, यहाँ पे 75y है प्लस अपन यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 15 x निकाल लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 15 माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल, तो यहाँ पर भी 15 माइनस वाई चाहिए, तो माइनस वाई का जुगाड़ करने के लिए -75 बाहर निकाल लेते हैं। -75 बाहर निकालेंगे ताकि माइनस वाई आ जाए,
चूंकि मुझे 15 चाहिए तो मैं +15 कर देता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टेक्निकली ये कांस्टेंट है, प्लस x इंटू 15 माइनस वाई। चूंकि राइट साइड में 0 था, क्योंकि मैंने 75 इंटू 15 एक्स्ट्रा कर लिया, तो यहाँ पे -75 इंटू 15 जोड़ना, प्लस माइनस किया और कुछ नहीं किया। ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे किया? इनमें से मैं 15 माइनस वाई कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा -75 प्लस x, तो ये बनेगा -75 इंटू 15। तो ये कर लेता हूँ y -15 कर लेता हूँ, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इंटू x -75 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 75 इंटू 15, आगे माइनस है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ये दो फैक्टर हो गए मेरे, y -15 इंटू x -75 की वैल्यू ये आ गई है। दिस इज 25 इंटू 3 विच इज 5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। तो बेसिकली दिस इज 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास y -15 इज इंटू x -75 की वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है, ये फैक्टर्स बनेंगे। इसको हाफ कर देंगे तो ये इसका पेयर बन जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। समझ में आ रही बात? पहले पेयर बनाने 2 टुकड़े, ऑर्डर्ड पेयर करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा बस। ये नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, उसके पावर ऐसे लिख के कितने फैक्टर्स बनेंगे, इतना +1 इंटू इतना +1 का हाफ करते हैं। ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितने बन गए? 12 बन गए। ये 12 क्या है, ये मैं एक बार समझा रहा हूँ डिटेल में लिख के, ये एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने का पर्पस है। ये 12 पेयर कौन से हैं वो समझाता हूं मैं। मान लेते हैं मेरे पास y -15 इंटू x -75 है, मैं इज इक्वल टू 1 इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, एक नंबर ये बनेगा। दूसरा नंबर यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 का क्यूब 3 की पावर 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर। फिर मैं ले लेता हूँ 5 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ले लेता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। उसके बाद मैं ले लेता हूँ एक 3 ले लेता हूँ और एक 5 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5 की पावर 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लेते हैं 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 5 इंटू 3 बचेगा। ये उल्टा तो होना शुरू नहीं हो गया यहीं पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 में ना रिपीट हो गए हैं, 1 2 3। अब ये 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 5 लिया हुआ मैंने कहीं पे? नहीं, इतने ही बनने चाहिए ना, इतने। 1 2 3 सारे अलग है ना, 4 5 6, 3 15, राइट साइड में 15 है कहीं पे? नहीं है, तो ये तो सही है इसका मतलब। 3 और 4 सेम है। 5 ये वाला क्या, थर्ड और फोर्थ, हाँ ये सेम हो गया ना, हाँ ठीक है, एक तो ये हटाना पड़ेगा। ऐसे ही सेम लिखेगा यहाँ कुछ ना कुछ है। 3 पावर 2 5, और कहाँ पे है, नीचे भी है, हाँ उसमें से ये हो गया, ये रिपीट हो गया, ठीक है। और तो बने 1 2 3 4 5 6, और कौन सा रिपीट हुआ है? 5 क्यूब 3 की पावर 1 है भाई ये। अच्छा फर्स्ट वाला, अच्छा ये तो 1 के साथ है ना, 1 के साथ तो कोई है ही नहीं, ये अलग है, दिस इज ओनली 1, और कुछ रिपीट हुआ होगा। 3 स्क्वायर 5 इंटू 5, 3 स्क्वायर, हाँ ये कोई आ गया लास्ट पेयर, 3 स्क्वायर 5 इंटू 5, ये थोड़ी ना है, ये तो अलग है।
लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ठीक है ये रिपीट है, तो ये वाला रिपीट हो गया। 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 12 हो जाएंगे। अब इसको समझा रहा हूं, मान लेते हैं हमने पहले वाला लिया, तो y माइनस 15 इज इक्वल, नहीं इसको ब्लैक में रखते हैं, y माइनस 15 इज इक्वल टू 1, और फिर x माइनस 75 इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। यही बात है। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 15 प्लस 1, राइट साइड में ऐड हो गया, और यहाँ y की वैल्यू आ गई 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 75। एक आंसर ये आ गया। ऑर्डर्ड पेयर में ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। सेकेंड आंसर आएगा y माइनस 15 इज इक्वल टू 3, x माइनस 75 इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 3। तो यहां से x का आंसर आएगा 15 प्लस 3 और y का आंसर आएगा 5 क्यूब इंटू 3 प्लस 75। इस तरीके से 12 आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं मैंने इसको -1 कर दिया, इसको -1 कर दिया। टेक्निकली दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल आंसर बिकॉज x एंड y कैन बी इंटीजर। उस केस में मेरा फर्स्ट आंसर आएगा y माइनस 15 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस 75 इज इक्वल टू -5 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहां से मेरा आएगा y की वैल्यू बनेगी +15 -1 14 आएगा, और यहाँ x की वैल्यू बनेगी माइनस जो भी आएगा ये 5 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 75। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 125 इंटू 9 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो x y पॉजिटिव x नेगेटिव, एक्सेप्टेबल आंसर। ऐसे ही जब हम y माइनस 15 को -3 लेंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल आंसर आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, समझ में आ रहा है। y माइनस 15 को आप 5 लेंगे तो भी एक्सेप्टेबल आंसर आएगा क्योंकि y पॉजिटिव। अगर हम y माइनस 15 को ये वाला केस ले लेते हैं -5 क्यूब, क्या ये चलेगा आंसर? समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये वाला केस नहीं चलेगा मेरा। ऐसे ही कोई भी वैल्यू -15 से बड़ी होते ही हमारा काम खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये खराब हो जाएगा, एक केस खत्म हो जाएगा। ये 15 भी खराब हो जाएगा बिकॉज y माइनस 15 इज इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू 0 बन गई। और ये तो हमने बनाया है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है ना ये, इट कैन नॉट बी 0 एंड मोर ओवर क्वेश्चन सेज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है जहां पर भी ये वैल्यू 15 से बड़ी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये 3 तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, एंड 3 तो ये हो गए। उसी तरीके से दूसरी वाली तरफ जब ये रिवर्स करेंगे, अपन रिवर्स करेंगे तो इस वाले केस में ये वाला केस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, उस केस में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वाला केस इधर आ जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो कितने केसेस ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे? 8 केसेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। कौन कौन से केसेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे? जिस केस में लेफ्ट वाली वैल्यू यानी y वाली वैल्यू 15 से बड़ी हो, यानी कौन कौन सी बड़ी होगी? -15 आ जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -15 इंटू 3 आ जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मैंने बना लिया था -15 इंटू 5 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -15 इंटू 25 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -15 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -15 इंटू 5 इंटू 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -5 का स्क्वायर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -5 का क्यूब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू -15 से बड़ी है। जैसे ही इसको y -15 को ये डालेंगे तो 0 हो जाएगा, y -15 को ये डालेंगे तो ओवरऑल y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये सारे केसेस नहीं चाहिए हमें, तो टोटल 24 केस थे, उसमें से 8 केस नहीं चाहिए, तो ला गया आंसर। कौन सा? ना 8 पता नहीं था, निकाला मैंने। देख, एक तरीका ये हो सकता था, मैं बता सकता हूं तरीका मैंने कैसे किया था। मैंने ऐसे किया था, जब y -15 इंटू x -75 की वैल्यू हमारी आ गई 5 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ गई थी। अब मुझे पता है कि मेरे को 15 तो चाहिए ही चाहिए, -15। अब बच क्या गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 5 स्क्वायर 3 की पावर 1, यानी इसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो नहीं चाहिए क्योंकि 15 निकाल लिया। इसके साथ कितने बनेगा? 3 इंटू 2 6, तो ये तो नहीं चाहिए। उसके अलावा 2 ही चीजें दिख रही है, 5 का स्क्वायर नहीं चाहिए और 5 का क्यूब नहीं चाहिए, बस ये हो गया। 8 मैंने यहां से निकाले थे।
ये तो समझा रहा था क्या है, किया तो ये सही था मैंने। समझ में आया क्या? 15 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 15 या उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो 15 अगर निकाल लिया तो इसके जो बनेंगे वो 6 जोड़े तो बनेंगे, वो तो हम फॉर्मूले से लगा रहे हैं, वो तो पक्का ही गारंटीड है आउट। लेकिन सिर्फ 5 की पावर भी दिख रही है, तो अगर लेफ्ट साइड में 5 का स्क्वायर आ गया तो भी पंगा है, 5 का क्यूब आ गया तो भी पंगा है, और बाकी पंगे तो यहाँ से निकल ही गए। तो यही 8 होने चाहिए, वो 8 माइनस कर दिए तो आंसर आ गया, ये नहीं क्या। नहीं तो ये तो समझा तो दिया ही है मैंने, क्या लफड़ा है इसमें, कैसे करना है। टफ क्वेश्चन, नो डाउट। चलो एक और कर लो, ऐसा ही है, थोड़ा अलग है। मुझे पता है मेरे से ही करवाओगे तो बाद में आज ही करवा के खत्म कर, निपटारा मार दूं मैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, 2-3 साल में ना ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में चले जाते हैं, एग्जाम्पल वाले इसमें आ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल का पर्पस होता है कॉन्सेप्ट समझाना, तो क्वेश्चन को आसान तो रखना ही पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसी के बाद तो आप सोच पाओगे। नहीं तो पढ़ाने की क्या जरूरत है, 5 क्वेश्चन उठा के करा देता हूँ, बोलूंगा हो गया। अब आइडियली तो ये भी तो एक ही क्वेश्चन से काम चल जाता है, इसमें पूरे चैप्टर में है क्या देखो। अगर आप ये चैप्टर देखो तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो इतनी है, उसके बाद तो एग्जाम्पल ही है। कहने को तो 10-15 मिनट में कर देते हैं, एक पेज कहाँ थ्योरी है, 1/4 है, यहाँ से यहाँ खत्म। बट एनीवे चलो करो इसको, है लीनियर और क्वाड्रेटिक, अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक। किसकी शॉर्ट ट्रिक मतलब? यही तो बता रहा हूँ, और क्या, कोई ट्रिक नहीं होती भाई। लॉन्ग से निकाल दो तो भी बड़ी बात है, निकाल तो दो। हाँ एक ही आएगा। हाँ जी, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स, और कुछ नहीं दिया हुआ।
हाँ जी बना। 40 तो सही है बट थोड़ा गलत है। ठीक है खुशी, सही है। एक केस तुमने एक्स्ट्रा ले लिया। एक्स्ट्रा तो नहीं लिया, लिया तो सही है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है। प्रैक्टिकली जो हमने जीरो वाला x0 y0 वाला केस रूल आउट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जिसके अंदर एक एक सिचुएशन बनेगी ना जहां पे x0 y0 आएगा, वो नहीं चाहिए। क्या हुआ? हाँ जी करना है इसको। थर्टीन वाई माइनस 7x इंटू 4 इज इक्वल टू XY, यही बात है। तो बनेगा 52y माइनस 28x माइनस XY इज इक्वल टू 0। तो 52y अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस x। यहां से हम 52 कॉमन निकालेंगे, अंदर 28 चाहिए प्लस y चाहिए, तो यहाँ पे हमें 52 इंटू 28 चाहिए ही होगा। इसमें से हम निकाल सकते हैं y प्लस 28 इंटू 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 52 इंटू 28। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ रिजॉल्व करना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52 बनेगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 7 तो बनेगा 2 की पावर 4, 13 की पावर एंड 7 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 फैक्टर्स। उसको आधा करना पड़ेगा ताकि पेयर बन जाए, उसको डबल करना पड़ेगा ताकि ऑर्डर्ड पेयर बन जाए। तो 5 इंटू 4 20 आ गया, लेकिन ऑड इवन चाहिए, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव भी होएगा तो डबल हो जाएगा इसका। एक प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन को देखो, अगर मैंने y प्लस 28 को 28 मान लिया और 52 माइनस एक्स को मैंने 52 मान लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ माइनस एक्स की वैल्यू 0 आ गई, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। यानी एक केस बनेगा y0 x0, लेकिन हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में नीचे है 0 नहीं हो, तो वो वाला एक केस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 30। नंबर सिस्टम वाली क्लास लगाई थी, हाँ तो उसको देख दोबारा, एब्सेंट तो ऑनलाइन चेक कर देख। ऐसे क्या समझ, इतना अच्छा पढ़ा रखा है ऑनलाइन मैंने। कोई देखेगा कहेगा इतने गंदे मास्टर जी हमारे, क्लॉक्स में लगा दिए 2 घंटे।
देखते हैं क्या है ये. How many integral solutions satisfy the equation x square minus y square is equal to 627. हाँ, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इंटू, हम इसको 627 को 9 3 में जाएगा, 9 और 6 जाएगा, सो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 209 किसमें जाए, 9 तो 11 है, 3 तो नहीं जाएगा, 7 7 2 जा 14, 69 नहीं जाएगा, 7 8 13 13 एकम है, 11 में जाएगा, 11 में जाएगा, तो 11 1 19, तो ये मेरा बन गया 3 इंटू 11 इंटू 19. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज 8. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर 8 नहीं, 8 तो फैक्टर्स बनेंगे, तो वो जोड़ा बनेगा 4, मतलब अगर हम पेयर बनाएंगे तो 4 बनेगा, तो 4 बनेगा, तो अगर उसको नेगेटिव कर दें वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि स्क्वायर होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना उसका डबल हो जाएगा 8, तो ऑप्शन है 8 लग तो रही है, 29 का आंसर ए. 8, हाँ 8 का आधा कर दिया 4 है, आर डॉट पी आर इंटू 2, फिर इसका प्लस माइनस इंटू 2, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, 16 ओमेन मल्टी, तो 16 होना चाहिए, तो आंसर आ रहा होगा 16 कहीं ना कहीं, 29 ए, 16 या 20 आ रहा है? पता नहीं, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला एक्सरसाइज है, अच्छा सेकंड का है, सेकंड का 20 सी, हाँ ठीक है 16 है. ठीक है, वो पेयर बनाने के लिए आधा, ऑर्डर्ड बनाने के लिए डबल, और इवन माइनस बनाने के लिए उसका डबल. इसके बाद आएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्यों कराया, क्या कुछ ना नहीं, ये अच्छा चैप्टर है ये.